भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी कौन है? चुनाव आयोग। और अब उसी आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वो भी बिना सबूत, बिना दस्तावेज और बिना तथ्यों के। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक चुनावों में फर्जीवाड़ा हुआ। एग्जिट पोल और नतीजों में अंतर का हवाला देते हुए कहा कि कहीं 40 लाख फर्जी वोटर थे तो कहीं लाखों वोट 5 बजे के बाद डाले गए। आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से मना कर दिया और तो और बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप तक लगा दिया। Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. हम कह रहे हैं कि if the election commission now does not give us electronic voter data, not only of current election, but of the last 10, 15 years, and if they do not give us CCTV footage, they are partaking in the crime. Now, if the election commission is not partaking in the crime, I'm absolutely convinced they are, the data is showing they are, they should give us electronic voter lists. Please show me that pile of paper. 6 months. It's taken us 6 months to do this. Because they give us data like that. अब सोचिए, एक ओर तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि लाखों फर्जी वोट डाले गए और दूसरी ओर जब चुनाव आयोग फर्जी वोटरों को हटाने के लिए एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू करता है तो वही राहुल गांधी और पूरा विपक्ष उसका विरोध करता है। तो सवाल यही उठता है कि राहुल गांधी जी, आप चाहते क्या हैं? अगर चुनाव में गड़बड़ी है तो उसे सुधारने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसका समर्थन कीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन नहीं। बिहार में जब एसआईआर अभियान के तहत अवैध, डुप्लीकेट और फर्जी वोटरों को हटाया जा रहा है तो पूरा विपक्ष संसद की सीढ़ियों पर खड़ा हो जाता है, बैनर पोस्टर लेकर चिल्लाने लगते हैं। किसके पक्ष में खड़े हैं आप, फर्जी मतदाताओं या लोकतंत्र के? राहुल गांधी को महाराष्ट्र में फर्जी वोटर दिखते हैं, कर्नाटक में हेरफेर दिखता है, लेकिन जब बिहार में बांग्लादेशियों के वोट काटे जा रहे हैं तब वो आपको संविधान विरोधी लगता है। We have been saying since Maharashtra, give us electronic voter list for the last 10 years. Let us see it. Let us check it. I think the judiciary needs to get involved in this. We need to understand what is going on because what we love so much, our democracy, doesn't exist. What is the difference between us and other places? Where is the democracy? It's gone. If this is true. Now the election commission is supposed to make sure that elections take place. We have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat in Karnataka. And the people of that Lok Sabha have had their elections stolen. We believe that this has happened in many seats. Now, the election commission has to give us that information. Give the people of India that information. Because if they don't, there are going to be consequences. There are going to be consequences for every single polling officer who's doing this. Doesn't matter how senior you are, how junior you are. One day, the opposition is going to come to power, and then you see what we do to you. Because you are attacking the foundation of what our freedom fathers built. And we're not going to allow you to attack the foundation of what they built, no matter who you are. कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा का हवाला देकर राहुल कहते हैं कि वहां बीजेपी ने भारी बढ़त ली क्योंकि 1 लाख फर्जी वोटर थे। लेकिन सवाल है कि क्या ये आरोप अदालत में साबित किए गए? क्या कोई आधिकारिक शिकायत दी गई? क्या कोई एफिडेविट दिया गया? नहीं। और अब चुनाव आयोग ने जवाब में कहा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो कोर्ट जाइए। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया
कि यह आरोप अत्यंत गंभीर है। आप इन्हें कोर्ट में चुनौती दें। मीडिया में बयान देने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता। वहीं कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी चिट्ठी लिखी और शपथ पत्र मांगा है। कहा कि आपके पास जो डेटा है हमें उसे दीजिए, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, जहां कांग्रेस जीतती है वहां की वोटर लिस्ट कभी सामने क्यों नहीं लाते? तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड का क्या हुआ? आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। राहुल गांधी लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन जब लोकतंत्र की बुनियाद यानी मतदाता सूची को स्वच्छ किया जा रहा है तो संसद की सीढ़ियों पर बैठकर उसका विरोध करते हैं। तो क्या माना जाए, ये लड़ाई फर्जी वोटरों के खिलाफ है या वोट बैंक के संरक्षण की? राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को गाली देने से पहले आईने में झांकिए। जहां फर्जीवाड़ा दिखता है वहां SIR का समर्थन करिए, वरना देश आपको सिर्फ एक भ्रम फैलाने वाला नेता समझेगा जो सिर्फ हारने के बाद संस्थानों पर हमला करता है। अब देश इंतजार कर रहा है कि क्या राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे या फिर हर हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोकतंत्र को गुमराह करते रहेंगे। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।